Good morning, dear students. In our chemistry class, we are discussing chapter some basic concepts of chemistry. And we have discussed about mole concept and percentage composition and to determine empirical and molecular formula. Now, next is how to apply mole concept in chemical equations. So this is the next topic, stoichiometry, that is how to solve chemical equations on the basis of mole concept. Now, first of all, you need to understand what is stoichiometry. So stoichiometry is actually a branch of chemistry that deals with solving chemical equations, and it deals with actually quantitative relationship among the reactants and products in a chemical reaction. And it is derived, this word is derived from two words, stoichion meaning element and metron meaning to measure. Means it involves all the measurements regarding the amounts, moles, number, volume of the reactants and products in a balanced chemical equation. And as you write a balanced chemical equation, so you generally use some numbers to balance that particular atoms of elements and compounds that are used in that particular chemical reaction, and those numbers used in balanced chemical equation are called stoichiometric coefficients, and these coefficients can be interpreted as the number of moles of each substance. Means एक balanced chemical equation में आपको जितने numbers वहाँ दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, वो number एक particular molecule के साथ साथ उसका एक mole भी represent करते हैं. तो we have to interpret them as number of moles of each substance while solving these chemical equations, and this interpretation is the basis of all stoichiometric calculations. So next we'll see how we use this. So before starting calculation, let us need to understand what does a chemical equation convey. Look at this equation. It is combustion of methane gas in oxygen forming carbon dioxide gas and water vapor. So in this equation, the information conveyed by this equation is one molecule of methane combined with two molecules of oxygen to give two molecules of water vapor and one molecule of carbon dioxide. What else it can convey? So this is about the interpretation of stoichiometry in chemical reactions. So first one, the relative number of reactants and products that we have discussed. Second message जो एक chemical equation convey करती है information, that is relative number of moles. For example, look at this equation, 1 mole of methane, you can say, आप 1 molecule की जगह आप इसको 1 mole अगर हम interpret करते हैं, 1 mole of methane is combining with 2 moles of oxygen gas to form 1 mole of carbon dioxide gas and 2 moles of water vapor. Next, the relative masses of reactants and products. अब अगर हमें मोल्स पता लग गए यहाँ पे कि 1 मोल मीथेन का है, 2 मोल ऑक्सीजन गैस के हैं, 1 मोल CO2 का, तो we can predict the masses. हम masses अपने आप, because we know the mole mass relationship. तो 1 mole of methane means 16 gram of methane will combine with 2 moles of oxygen. That means 1 mole of oxygen gas is 32 gram, to 2 moles of 64 gram, and to form 1 mole of CO2, that is 44 gram, and 2 moles of water, that is 36 gram. So next, one more thing we can get from this balanced equation is that relative volume of gaseous reactants and products. As we all know that moles are related to gaseous volume also at STP. So if the reaction is carried out at standard temperature and pressure, at that time there will be a relationship between the number of moles of gases also. For example, 22.4 liter, because 1 mole ethane है तो 1 mole का volume 22.4 liter, it combines with 2 multiplied by 22.4 liter oxygen, giving 22.4 liter carbon dioxide and 44.8 liter water vapor at STP. The special condition required here is STP. Next is what are various types of calculations related to stoichiometry of a chemical reaction.
as we have discussed that chemical equations, when they are balanced, then those numbers are known as stoichiometric coefficients, and by using those stoichiometric coefficients we can easily find out the ratio in which a product is formed if a particular reactant is used, or the amount of reactant used to form a particular amount of product. So these relationships can be of following types: मोल टू मोल, आपको एक प्रॉब्लम में रिएक्टेंट का मोल दे करके और प्रोडक्ट का मोल फाइंड आउट करना पड़ सकता है, और रिवर्स कैन बी देयर, मास टू मास, मास दे करके दूसरे का मास पूछ सकते हैं. मीन्स एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू कैन इजीली अप्लाई, बिकॉज इन मोल, in terms of mole, molar mass, molar volume and Avogadro number, all these things are interrelated to each other. Next is stoichiometry map. It's just for understanding ki how these things are related. Moles are directly related to mass, volume of gases at STP, particles, number of particles, that is fixed Avogadro number in 1 mole of any species. And if you are given any of these things for a known substance, और आपको दूसरे unknown substance के लिए find करना है, simply write the balanced chemical equation and find that by unitary method. जब आपको number of coefficients, stoichiometric coefficients जब पता होंगे तो आप easily उनको apply कर सकते हो to find the mass or the volume or the number of particles for the unknown substance. This we'll understand with the help of few examples. First example, calculate the number of moles of water produced by combustion of 4.5 mole of methane gas. Methane gas का combustion हुआ है, 4.5 mole methane gas अगर आप burn करते हो तो आपको water vapor कितने mole मिलेंगे. तो let us see how to solve this problem. तो first step is write a balanced chemical equation for this process. जो process आपको question में given है उसकी balanced chemical equation आपको लिखनी पड़ेगी. And secondly you need to write the relation discussed. जो relation यहाँ discuss हुआ, अब यहाँ क्या relation आ रहा है, number of moles of water आपको find करने हैं और number of moles of methane gas reactant में आपको given है. तो mole to mole relationship आपको apply करना है यहाँ पे. तो firstly we'll write this balanced equation. Then we'll write जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया है सिर्फ वही रिलेशन लिखिए, नो नीड टू राइट द अदर वन. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिस्कस मोल मोल रिलेशनशिप. तो 1 मोल ऑफ मीथेन, और ये 1 मोल कैसे पता लगेगा आपको, जस्ट सी द कोएफिशिएंट्स जो नंबर बैलेंस्ड इक्वेशन में CH4 1 है और वाटर 2 मोल्स हैं. तो 1 मोल ऑफ मीथेन फॉर्म्स 2 मोल ऑफ वाटर. तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ यू आर गिवन विद 4.5 मोल व्हाट मास ऑफ वाटर वुड बी फॉर्म. तो ये आप सीधा आपको जस्ट रेशियो की फॉर्म में भी दिख रहा है कि 1 मोल से 2 मोल वाटर बन रहे हैं, तो 4.5 मोल विल ऑब्वियसली गिव 9 मोल, मतलब डबल है तो 9 मोल ऑफ वाटर वुड बी फॉर्म्ड. अदरवाइज यू कैन अप्लाई दिस यूनिटरी मेथड ऑल्सो. राइट स्टेटमेंट लाइक दिस: मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ मीथेन गैस इज 2 मोल. So moles of water produced from 4.5 mole of methane gas would be 2 multiplied by 4.5, that is 9 mole. So very simple to solve stoichiometric calculations applying the rules mass to ratio. In any way you can do that. Second example, calculate the amount of water in gram produced by combustion of 96 ग्राम ऑफ मीथेन गैस. अब 96 ग्राम मीथेन गैस है आपके पास और आपने अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम निकालना है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ मास टू मास रिलेशनशिप यू नीड टू सॉल्व. तो अगेन यू विल राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन सेम. उसके बाद आपको जो करना है, अब आपको मोल्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मास डिस्कस हो रहा है. तो डायरेक्टली राइट मास और उन्हीं सब्सटेंसेस का लिखो जो क्वेश्चन में डिस्कस हो रहे हैं. नो नीड टू गो फॉर अदर सब्सटेंसेस. तो 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस करता है 36 ग्राम वाटर. ये फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको उठाना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से. 1 मोल ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम, 2 मोल्स ऑफ वाटर इज 36 ग्राम. अब जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, राइट नेक्स्ट 96 ग्राम ऑफ मीथेन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा. तो ये डायरेक्टली आप एक रेशो के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू, और अदरवाइज यू कैन अप्लाई दिस यूनिटरी मेथड टू फाइंड. एज यू कैन सी दैट 16 का 6 टाइम्स हमने अब मीथेन लिया है, तो 36 का भी 6 टाइम्स आपको
रिएक्शन में जो वाटर मिलेगा. तो यू कैन फाइंड दिस लाइक दिस, 216 gram of water. Just apply simple unitary method here. Next, third example, what volume of oxygen gas is required to produce 150 centimeter cube of water at STP? अब STP पे 150 centimeter cube water produce करना है ऑक्सीजन गैस से. तो ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम चाहिए? तो यहाँ अब आपको वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई करना है. तो सेम थिंग, फर्स्ट यू नीड टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर्मिंग वाटर बाय यूजिंग ऑक्सीजन. तो आपको पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर. एंड इस रिएक्शन के लिए अब हमें वही चीज़ें यूज करनी है जो डिस्कस हुई है क्वेश्चन में. तो राइट द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 2 moles ऑफ वाटर. 1 mole के लिए 22.4 लीटर एंड 2 moles के लिए डबल कर दीजिए 44.8 लीटर एट STP. अब एज इन द क्वेश्चन सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज आस्क्ड इन सेंटीमीटर क्यूब. तो अब आप या तो यहीं पे कन्वर्ट कर दीजिए, अदरवाइज यू कैन फाइनली डू द कन्वर्जन लेटर आफ्टर फाइंडिंग द आंसर. तो हम आई एम converting it here only, liter into centimeter cube. centimeter cube means milliliter. एक ही बात होती है, आप centimeter cube लिखो या milliliters लिखो. तो 1 liter is always equal to 1000 centimeter cube. तो convert it into 22.4 liter means 22,400 centimeter cube. And अब 150 centimeter cube water produce हुआ है. ऑक्सीजन कितना लेना है? Obviously you will apply this unitary method to find this. सेम राइट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट फ्रेम आप अपनी मर्जी से थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में भी कर सकते हो, एज यू विश. नो प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. जस्ट यू नीड टू नो हाउ टू फाइंड द आंसर. आप रेशो वाला मेथड भी लगा सकते हैं और यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं. तो नाउ हियर नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल. यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ 85 ग्राम ऑफ इथेन गैस. अब यहाँ इथेन गैस के कंबशन से कितना वाटर फॉर्म होगा, बट थोड़ा सा हमने अब यहाँ मास आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने. तो दिस इज मास मोल रिलेशनशिप यू नीड टू अप्लाई. अगेन यू विल राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब क्या इक्वेशन की बैलेंसिंग आपको जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड, अप्लाई दैट ओनली. और आप अपनी मर्जी से कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू बैलेंस दीज इक्वेशंस. क्वाइट सिंपल टू बैलेंस. बैलेंसिंग क्लियर होगी, करेक्ट होगी, देन ओनली योर आंसर्स विल बी करेक्ट. तो नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सेकेंड स्टेप, राइट मास ऑफ इथेन एंड मोल ऑफ वाटर. आप डायरेक्टली वही रिलेशन लगाओ जो क्वेश्चन में गिवन है. नो नीड टू राइट कि पहले आप मास निकालो वाटर का फिर उसको मोल में कन्वर्ट करो डायरेक्टली, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. तो 60 ग्राम ऑफ इथेन गैस प्रोड्यूसेस 6 मोल ऑफ वाटर, as you can see through this balanced equation. 1 mole of ethane 30 ग्राम होता है, 2 mole of ethane gas is 60 ग्राम. तो 60 ग्राम of ethane gas is producing 6 mole of water on combustion. तो 85 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? तो सिंपली यू कैन अप्लाई मोल unitary method to find, and the answer is 8.5 mole of water. क्लियर? तो यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं आप, रेशो वाला मेथड भी लगा सकते हैं. एनी वे यू कैन डू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब स्टोइकियोमेट्री तो हमने डिस्कस कर ली. वहां पर वो उस तरह के क्वेश्चन जिनमें आपको एग्जैक्ट मासेस दिए हुए हैं, जितना एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो इन दैट केस नो नीड टू वरी, आप जो अमाउंट दिया वो यूज कर सकते हो. बट समटाइम्स सर्टेन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन अ लार्ज एक्सेस. जैसे सपोज आप कोई कंबशन रिएक्शन करवा रहे हो, तो कंबशन रिएक्शन अगर ओपनली एयर में होती है तो अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. वो सारी की सारी तो रिएक्ट नहीं करेगी उस सब्सटेंस से जो बर्न हो रहा है. तो in such cases where one reactant is present in a large excess and other one is actually getting completely consumed in a chemical reaction, that particular reactant जो उतने अमाउंट में है कि वो पहले कंज्यूम हो जाएगा completely एक रिएक्शन में, उस रिएक्टेंट को हम कहते हैं limiting reactant. तो the reactant which gets completely consumed in a chemical reaction is called limiting reactant.
and this is also called limiting reagent, and in generally while solving numericals we can use abbreviated form LR for this, and its concentration limits the amount of product formed in a reaction. This is very important कि इसकी जो amount होगा, जितना अमाउंट में आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, दूसरा आप कितना भी अमाउंट ले लो लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कितना अमाउंट है उसी पे बेस होगा, क्योंकि अब वो एक चीज जब खत्म ही होगी तो दूसरा एक्सेस वाला अकेला मिलकर तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू नीड टू कैलकुलेट मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, एंड इफ वन स्पीशीज इज प्रेजेंट इन अ लार्ज एक्सेस तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है वो उस एक्सेस वाले रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, रादर इट विल डिपेंड ऑन द amount of the limiting reactant present in that reaction. Next is excess reactant. As we have discussed कि एक reactant अगर लिमिटिंग में है और दूसरा लार्ज अमाउंट में है तो वो दूसरा जो रिएक्टेंट होगा उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड अमाउंट से हमेशा ज़्यादा होती है. मीन्स लिमिट जितना रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, बिकॉज हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं कि दो सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं वो एक फिक्स्ड मास रेशो में ही करते हैं. अब उससे ज़्यादा अगर आपने वो एक सब्सटेंस लिया भी है तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वो बच जाता है. आफ्टर दिस रिएक्शन इट गेट्स लेफ्ट अनरिएक्टेड. So the reactant which is present in a quantity greater than required to react with limiting reactant in a chemical reaction is called excess reactant. Its extra quantity would be left unreacted, और ये जो extra amount है वो unreacted बच जाता है, कोई बाद में reaction में utilize वो नहीं होता. And it is also called excess reagent, और हम इसको ER से भी represent कर सकते हैं during solving calculations. And its concentration does not limit the amount of product formed in a reaction. और जो कितना product बनेगा उसका amount इस पर depend नहीं करता, it depends only on limiting reactant. So next we have one example of this type of question. So now we'll discuss this example in which we need to solve the question on the basis of limiting reactant. So here 50 gram of nitrogen gas reacts with 10 gram of hydrogen gas to produce ammonia. Calculate the amount of ammonia formed and find the limiting reactant in the reaction. So what you need to do is, first step हमारा balanced equation लिखनी है. तो firstly write a balanced equation of combining nitrogen with hydrogen forming ammonia gas. So it's N2 plus H2 giving 2NH3. Ammonia की बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग या हाइड्रोजन जो है वो 3 मोल्स है. तो नाउ राइट, बिकॉज मासेस आर डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन, तो राइट मासेस N2 1 मॉलिक्यूल 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 ग्राम मास. हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, 1 मोल का मास 2 ग्राम, 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस 6 ग्राम, एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया 17 ग्राम, 2 मोल्स 34 ग्राम. ओके अप टू दिस. अब नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी, जो क्वेश्चन में अमाउंट्स गिवन है ये अमाउंट हमेशा हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट से निकालने हैं, याद रखना है ये आपने. नेक्स्ट इज, अब आपने जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, राइट, नोट डाउन दैट 50 ग्राम नाइट्रोजन इज गिवन, 10 ग्राम हाइड्रोजन इज गिवन, एंड यू नीड टू फाइंड फर्स्टली द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म. बट हियर इन दिस क्वेश्चन, एक तो आपको क्वेश्चन से ही हिंट मिल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है, मीन्स एक चीज जो है वो एक्सेस में है. अदरवाइज ऑल्सो यू नीड टू चेक, इफ इट इज नॉट आस्क्ड ऑल्सो देन ऑल्सो यू नीड टू चेक कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो नहीं है उसमें कोई, तो फिर प्रोडक्ट आपका वेरी करेगा. तो फॉर हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस, राइट, मास ऑफ यूनिटरी मेथड से आप निकालोगे कि नाइट्रोजन 6 ग्राम मास हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करती है तो कितना अमाउंट उसका यूज हो रहा है, दैट इज 28 ग्राम, एंड मास ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 10 ग्राम हाइड्रोजन इज 46.66 ग्राम. ये निकाला हमने वैसे ही है यूनिटरी मेथड से. तो अब 46.66 ग्राम आपको चाहिए नाइट्रोजन. आपके पास नाइट्रोजन कितनी है, 50 ग्राम. तो क्या हुआ, समझ में आया, नाइट्रोजन 50 ग्राम है, आपको रिक्वायर्ड है 46.66 ग्राम. दैट मीन्स एक्स्ट्रा है आपके पास नाइट्रोजन, ठीक है. तो अब जो चीज एक्स्ट्रा होगी वो तो एक्सेस रिएक्टेंट हो गया. अब आपको पूछा गया क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. एंड अब आपको जो अमाउंट प्रोडक्ट का निकालना है वो
हाइड्रोजन पे ही बेस्ड होगा, मतलब हाइड्रोजन 10 ग्राम है तो उससे कितना अमोनिया बनना है वो ही फाइंड करोगे। अगर आपने फाइंड कर लिया कि 50 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा तो वो आपके पास ज्यादा अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि आपके पास तो उतनी हाइड्रोजन है ही नहीं 50 ग्राम पूरा कंबाइन करवाने के लिए। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर। तो मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 6 ग्राम हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन वाले रेशियो से ही उठाना है कि कितना अमोनिया बनेगा। अगर आप 6 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम करते हो तो 34 ग्राम है, अगर आप 10 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम करते हो तो कितना है। अदरवाइज एक और सिंपल सा मेथड है इस आंसर को निकालने के लिए कि अमोनिया कैसे पता लगाना है आपने। अब आपको ये पता लग गया कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, उस लिमिटिंग रिएक्टेंट को कंप्लीटली कंज्यूम करवाने के लिए आपके पास नाइट्रोजन आपको चाहिए 46.66। अब यहां आप लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 10 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 46.66 ग्राम नाइट्रोजन, दोनों मिलकर के कितना अमोनिया बनेगा 56.66 ग्राम। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू फाइंड, अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं लगाना प्रोडक्ट निकालने के लिए, एंड यू नो द अमाउंट ऑफ LR and the amount of excess reactant that is required for complete reaction, ठीक है, then you need to add। ये नहीं कि आपने 50 और 10 ऐड नहीं करना, तब वो रॉन्ग होगा। तो इट्स 56.66%। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब एक चीज हम और देख सकते हैं, अब एक क्वेश्चन हम इसमें और पूछ सकते हैं कि कितना एक्सेस रिएक्टेंट यहाँ पे बचेगा। तो दैट इज सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट ऑफ अमोनिया जो हमने subtract the amount of nitrogen जितना required है 46.66 ग्राम from the amount which is given in the question। आपको 50 ग्राम दिया था, उसमें से माइनस कर दीजिए, you will get 3.34 ग्राम excess reactant left। Okay, so I think now all the things are clear to you। Try to solve the assignments। For any query you can call me। Okay, thank you, have a nice day।